Okay, guys, welcome back to Backbenchers Academy, hashtag Mayank Sir. And today we are recording a video for class 11 CBSE. Okay, the chapter is Albert Einstein at School, part 2. Okay, so we have recorded part 1 of this video few days back, and today we want to complete the rest of the chapter. Okay, so be with us, and today we are going to record it. And I hope you are enjoying the videos of CBSE. Please share it with your friends. Please do it. बहुत जन को नहीं पता कि हम लोग सीबीएसई के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बट ऑल दोज हु आर कमिंग टू सीबीएसई फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, they should be happy that Mayank sir is also on CBSE. We have recorded a lot of videos for CBSE, so please be with us. We are there for you all the time. Okay, so let's start recording this part 2. So here comes the PDF. Okay, so I don't know whether you people can see the screen because no live students are here right now. Okay, but I hope you people can see the screen. Are you seeing the screen now? चलो, अगर नहीं भी दिख रहा होगा थोड़ी देर में आ जाएगा. तो पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. From here, I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work, and perhaps that will be enough. I have learned all the maths they teach at school and a bit more, he added when Dr. Wheel looked doubtful. Okay. Now, Dr. Wheel is a friend of Yuri. Okay. And Albert Einstein has come to Yuri to Dr. Wheel to get a certificate for leaving the school. So he wants a certificate that he is not very well, so that he can go from the school for say 6 months. Okay, so he wanted a leave of 6 months. So he has come to see Dr. Wheel, who is actually a friend of Yuri. Okay, so Dr. Wheel is not very convinced. So he's asking, what will you do? Tum school to chhod dega, par karega kya? So he's saying, perhaps I'll join a college. और मेरे मैथ्स के जो टीचर है वो मुझसे बहुत खुश हैं क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में काफी ठीक हूं. एंड ही विल गिव मी अ गुड व्हाट यू से सर्टिफिकेट की yes, this guy is actually capable of coping up with higher maths. Okay, तो उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए था, लीव सर्टिफिकेट. ठीक है. तो डॉक्टर इज सेइंग, वेल इट्स अप टू यू. ही सेड, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, but I can see you're not doing yourself or anyone else much good by staying here. How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months be all right? तो डॉक्टर व्हील जो है वो बोल रहे हैं, यार ये तो एबनॉर्मल सा बात लग रहा है, ऐसे तो कोई बच्चे करते नहीं है, बट तुम यहाँ पर भी बैठ के कुछ नहीं कर रहे हो. ओके, यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर, सो लेट्स टेक अ चांस. आई विल गिव यू अ लीव, से 6 मंथ्स का मैं तुमको लीव दे देता हूँ. तो आप जाओ और कुछ करो. अगर आप कुछ कर सके तो इट्स वेरी गुड. अगर आप नहीं कर सके तो 6 मंथ्स के बाद वापस आ जाना. एटलीस्ट अपना क्लास 12 जो हम लोग बोलते हैं ना, ग्रेजुएशन कर लेना, कॉलेज तो कंप्लीट कर लेना. सो यू हैव अ चांस. 6 मंथ्स का लीव दे देता हूं मैं आपको. अगर यू सक्सीड इन डूइंग अ हायर कोर्स, इट्स वेरी गुड. अगर आप नहीं कर सके तो कम बैक टू दिस ओरिजिनल स्कूल and complete your certification. Okay, obviously he says, Mr. Einstein says, this is very kind of you. It's nothing, I have only just stopped being a student myself, so I know how you feel. Here you are. Dr. Wheel handed him the certificate and the best of luck. तो इनका भी जो डॉक्टर व्हील है, ये भी अभी नए नए डॉक्टर बने हैं. ही वाज आल्सो स्टूडेंट. तो सब स्टूडेंट लोगों को पता है कैसे उनके संग यू नो योर स्कूल लाइफ ना, स्कूल लाइफ इज वंडरफुल बट समटाइम्स इट इज बिट ऑफ अ पेन. तो उनको भी पता है कि कैसे कभी कभी इट्स नॉट वेरी व्हाट यू से एनर्जेटिक प्लेस, इट्स लिटिल बोरिंग. तो बोला मुझे पता है स्टूडेंट्स कैसे सफर करते हैं. सो टेक दिस सर्टिफिकेट, एंजॉय योरसेल्फ. हाउ मच? ओके, एल्बर्ट आइंस्टाइन समझा कितना रुपया देना होगा. बोला नथिंग. इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, इनवाइट यूरी टू अ मील. ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक. तो बोला नहीं, कुछ रुपया नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो यूरी को थैंक यू बोलने के लिए उसको थोड़ा सा डिनर के लिए ले जाना. ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन और योर्स ऑल्सो, तुम्हारे भी अच्छा कॉमन फ्रेंड है हम लोग का, तो उसको छोटी सी पार्टी दे देना. Albert had no money to spare, but he pretended he had and took Yuri out to supper. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहीं जहां उसे थोड़ा पैसा जुगाड़ किया और वो यूरी को सपर में लेके चले गए. ठीक है, थोड़ा सा खाना पिलाने के लिए. थैंक्स गिविंग. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. एल्बर्ट आइंस्टाइन यूरी को सर्टिफिकेट दिखाया और बोला, देखो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया. एट लास्ट मैं यहाँ से जा सकता हूँ. आई एम एक्चुअली नॉट लाइकिंग दिस प्लेस. मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ. Yuri bola, yes, it's fine. Yuri agreed. 6 months is a good period. This way, you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. तो बोला 6 मंथ एक बहुत अच्छा टाइम है, कुशन पीरियड है, आपको कुशन मिल गया. ठीक है, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए क्वालिफाई हो गए, बहुत अच्छी बात है, आपको वापस नहीं आना. अगर आप नहीं क्वालिफाई हो सके तो आप वापस स्कूल आइए 6 मंथ्स के बाद और अपना डिप्लोमा, वो लोग डिप्लोमा बोलते हैं, हम लोग ग्रेजुएशन या सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो करके कंप्लीट कर दीजिए.
Albert Einstein बोल रहा है, I will never go back to that place. Albert assured him, I am going to take the certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. बोला मैं वापस नहीं आ रहा हूं, मैं सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, छुट्टी लूंगा एंड आई विल जस्ट कट ऑफ, और फिर मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा अपनी लाइफ में. आई एम नॉट कमिंग बैक टू दिस स्कूल. उनको वो स्कूल इतना पसंद बिल्कुल भी नहीं था. उनको एक्चुअली दैट स्कूल हैड अ वेरी बैड मेमोरीज. ओके, तो यूरी एडवाइस कर रहा है कि डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट. यूरी रिमाइंडेड है. बोला लेकिन एक बात कर लेना, अगर तुमको कॉलेज में एडमिशन चाहिए और मैथमेटिक्स में चाहिए तो तुमको अपने स्कूल के टीचर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि दिस बॉय, हम उनका ना उस जमाने में मेरे ख्याल से बोर्ड्स के एग्जाम नहीं होते थे, एक पैटर्न नहीं होता था कि बोर्ड्स के एग्जाम क्लियर करना है तभी आप आगे जा सकते हो. अगर कोई रेप्यूटेड टीचर आपको सर्टिफिकेट देता है कि नो लाइक दिस पर्सन हैज एक्चुअली क्रॉस दिस लेवल, उनका ये लेवल क्रॉस्ड है, तो वो आगे स्टडी कर सकते हैं, कोई रेप्यूटेड टीचर का सर्टिफिकेशन मिल जाए तो यहाँ पे यूरी बोल रहा है कि तुम पहले मैथ्स टीचर से सर्टिफिकेट ले लेना दैट यू आर एलिजिबल फॉर हायर स्टडीज. ओके, तो उससे क्या होगा कि तुम कॉलेज जा सकोगे. ओके ओके, मिस्टर कुक willingly gave Albert the references wanted. तो ये इनके जो मैथ्स के टीचर है मिस्टर कुक, उन्होंने आराम से उनको क्या नाम है सर्टिफिकेट दे दिया. एक्चुअली मिस्टर कुक जो है मैथ्स के टीचर, वो काफी इंप्रेस थे आइंस्टाइन से, बहुत प्यार भी करते थे बिकॉज आइंस्टाइन इज अ गुड स्टूडेंट. ओके, वाज अ गुड स्टूडेंट रादर. उनके क्लास में वन ऑफ द सबसे ब्राइट स्टूडेंट थे वो. ठीक है, सब बैक बेंचर्स की तरह, एवरीबडी इज ब्राइट. खाली नाम हमारा बैक बेंचर्स, लोग सोचते हैं बैक बेंचर्स, बट याद रखना द स्मार्टेस्ट, ओके, द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री दे सिट ऑन द लास्ट बेंचेस. और ये मैंने नहीं बोला, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी बोलते हैं, और इसी के लिए मैं भी ये बात मानता हूं. ओके, चलो. If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be right? He asked. देखो उनके टीचर क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे सर्टिफिकेट में ऐसा लिख देता हूं कि अब मैं इस लड़के को और नहीं पढ़ा सकता, उल्टा ये लड़का मेरे को पढ़ा सकता है. क्या ऐसे लिखने से अच्छा रहेगा? तो वो थोड़ा सा जोक कर रहे हैं एल्बर्ट के संग. तो एल्बर्ट भी शर्मा एकदम एम्बैरस हो जाता है, बोलता है सर दैट्स सेइंग टू मच, कुछ ज्यादा हो गया सर, इतना भी मत लिखिए लेकिन कुछ अच्छा लिख दीजिए. तो लेकिन सर बोलते हैं नहीं, इट्स ओनली द ट्रूथ, बट ऑल राइट आई विल पुट इट मोर सीरियसली. बोला लेकिन ये सच बात है कि कुछ ही टाइम के अंदर तुम इतने बड़े जीनियस बनने वाले हो कि तुम मुझे पढ़ा पाओगे. यू आर बेटर देन मी. अभी तुम मुझसे बेटर हो, कुछ टाइम के बाद तो तुम और अच्छे हो जाओगे. ठीक है, सच अ नाइस टीचर. हाँ, इट वॉज अ ग्लोइंग रेफरेंस, और उन्होंने एक बहुत अच्छा रेफरेंस, बहुत अच्छा सर्टिफिकेट एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया. ठीक है, और बहुत तारीफ की उनकी, जिससे आगे जाके उनको बहुत हेल्प होती. ठीक है, मिस्टर कोक मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वाज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उनको मिल गया. उन्होंने क्लियर सर्टिफाई कर दिया कि एल्बर्ट इज रेडी फॉर कॉलेज, इमीडिएटली रेडी, माने ऑलरेडी ही इज, दिस गाय इज सो ब्राइट that he can enter a college or institute higher mathematics के study करने के लिए. ठीक है, okay, I'm sorry you're leaving us although you're wasting your time in my class, he said. तो मैथ्स टीचर बोल रहे हैं मुझे इस बात का दुख है कि तुम जा रहे हो हमें छोड़ के, लेकिन तुम मेरे क्लास में कुछ नहीं कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे. उनका कहने का मतलब ऐसा है कि he was too good ना. वो जो बच्चा 12 का मैथ्स कर सकता है, अगर वो 8 क्लास में बैठेगा तो अपना टाइम वेस्ट ही करेगा, है ना. दैट काइंड, यहाँ पर वो उनको गुस्से से नहीं बोल रहे थे, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि तुम इतने ब्रिलियंट हो कि जो लड़का इतना हायर स्टडीज कर सकता है वो जूनियर क्लासेस में क्या कर रहा है. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम, सेड एल्बर्ट, बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर. तो एल्बर्ट बोलता है कि सर खाली एक मैथ्स का एक क्लास है जहां मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, बिकॉज आई लव डूइंग मैथ्स. ठीक है, लेकिन मैं जा रहा हूं सर, ये आपको कैसे मालूम. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, क्योंकि टीचर्स लोग की आपस में डिस्कशन हो चुकी है, प्रिंसिपल की डिस्कशन हो चुकी है कि वो कैसे ना कैसे एल्बर्ट को बाहर निकालेंगे. दे आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ सेंडिंग एल्बर्ट आउट ऑफ द स्कूल, लेकिन वो अपना खुद का एक तो रेफरेंस लेकर आ गया. यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, आई थॉट यू हैड वंडर. तो बोल रहा है अगर मुझे पता है कि तुम यहां से जाने वाले हो, ही हैज अ हिंट, क्योंकि अगर तुम यहां से जाने वाले नहीं होते तो तुम मुझसे ये सर्टिफिकेट नहीं मांगते. द फैक्ट दैट यू आस्किंग फॉर दिस सर्टिफिकेट मींस दैट यू आर गोइंग टू लीव अस. ठीक है, there's nothing to wonder about Einstein. I knew you were going to leave before you knew you yourself. तो मैथ्स का टीचर तो ये बोल रहा है, आइंस्टाइन बोल रहा है कि मुझे लगा जब मैं बोलूंगा कि मैं जा रहा हूं तो आप सरप्राइज होगे. तो वो बोले कि नहीं, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जाने वाले हो. उनका रेफरेंस ये है कि पहले ही बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, टीचर्स मीटिंग हो चुकी है कि किसी ना किसी तरह वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बाहर निकालेंगे. ठीक है, और ऐसा ही हुआ. Albert Einstein soon found out before he had any chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. तो इससे पहले कि वो हेड प्रिंसिपल से मिलते, प्रिंसिपल ने खुद ही एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने रूम में बुला लिया. Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought.
तो एल्बर्ट सोला चलो अच्छा हुआ बुला लिया, तो कम से कम 1-2 घंटा बच गया, वरना प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लो, वेट करो, टाइम पास होगा। उन्होंने खुद बुला लिया तो अच्छा है, मेरा टाइम बच गया। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposedly he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. तो एल्बर्ट को ये नहीं समझ में आया कि क्यों बुलाया प्रिंसिपल ने। तो नॉर्मली प्रिंसिपल उनको बुलाते रहते थे, क्योंकि उनका काम कभी नहीं होता था, कभी वो खराब काम करते थे, कभी लेजी होते थे। और इसका रीजन ये था कि वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर सब्जेक्ट। ठीक है, अपने सब्जेक्ट में तो सुपर्ब थे, लेकिन और कोई सब्जेक्ट में उनको करने का मन नहीं था, तो उनको हमेशा पनिशमेंट मिलती रहती थी। तो उनको लगा चलो एक और पनिशमेंट होगी, पर बोला नहीं, इस बार तो मैं जाके अपना दिखा दूंगा डॉक्टर सर्टिफिकेट, और अब मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती। पर हुआ कुछ उल्टा ही, प्रिंसिपल उसको निकाल रहा था। यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन छोड़ के जाना चाहते थे, पर उससे पहले ही प्रिंसिपल ने उनको निकालने का प्लान बना लिया था। प्रिंसिपल ने बोला, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू दिस टाइम। द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज, योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। आइंस्टाइन, आई वांट यू टू लीव द स्कूल नाउ। तो हेडमास्टर ने बोला, देखो तुम्हारा काम बहुत खराब है और मैं तुम्हें और स्कूल में नहीं रख सकता, तो तुमको अब से अभी के अभी स्कूल से जाना होगा। नाउ ये तो इंसल्ट हो गया। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन जा रहे थे ऑन अ मेडिकल ग्राउंड, तो वो स्कूल छोड़ रहे थे, पर यहाँ पे प्रिंसिपल ने उसको स्कूल से निकाल दिया। सो लिटिल बिट सिचुएशन थोड़ा सा मैंने टर्न्ड अराउंड ना, कि एल्बर्ट को लग रहा था कि मैं छोड़ रहा हूं, पर ऐसा नहीं, उनको निकाला जा रहा है, डिफरेंट है। अच्छा, एक और डिफरेंस है यहाँ पे, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन मेडिकल सर्टिफिकेट से छोड़ के जाते तो वो वापस स्कूल में आ सकते थे, लेकिन अगर प्रिंसिपल उनको निकालेगा तो वापस स्कूल नहीं आ सकते, बिकॉज ही हैज बीन सस्पेंडेड। ओके, तो वो बोल रहे लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज, दैट इज व्हाट आई सेड, यू मीन सेड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। पर अब यहां पर छुट्टी नहीं मिल रही, अब उनको स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। सो ही हैज नो वे टू कम बैक, ही कैन नॉट कम बैक एंड जॉइन द स्कूल। ओके, तो एल्बर्ट प्रिंसिपल बोल रहे हैं, ओके अगर तुमको एक्सपेल्ड बोलना तो एक्सपेल्ड बोल दो, यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश आइंस्टाइन। द हेड टीचर वाज नॉट मिंसिंग वर्ड, वो अपने वर्ड को क्लियरली बोल रहे थे कि भाई हम तुमको स्कूल से निकाल रहे हैं। ठीक है, वो मैंने एकदम बुरा लगे तो लगे, बट आई एम गोइंग टू टेल ऑन द फेस कि भाई वी आर एक्चुअली एक्सपेलिंग यू फ्रॉम द स्कूल, यू आर सस्पेंडेड। The simplest thing will be for you to go off on your own accord and then the question won't arise. बोला इससे पहले हम तुम्हें स्कूल से बाहर निकाले, तुम खुद ही चुपचाप स्कूल से बाहर चले जाओ। But said Albert, what crime have I committed? तो बोला आप मेरे को स्कूल से क्यों निकाल रहे हो, मैंने क्या क्राइम किया है? तो यहां पर ये एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि why he was actually expelled from the school। उसका आंसर आप लोग अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना, this paragraph becomes very important। okay, so the reason which has been given is your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. You refuse to learn, you are in a constant rebellion and no serious work can be done while you are there। बोला तुम क्लास में रहते हो, खुद काम नहीं करते, टीचर्स से क्वेश्चन करते हो उल्टे सीधे, टीचर्स को चैलेंज करते हो, कभी कभी तुम्हारी बात में लॉजिक भी होता है तो टीचर लोग उसका आंसर भी नहीं दे पाते, लेकिन तुम एक तो बैड इन्फ्लुएंस हो और स्टूडेंट्स के लिए, बाकी स्टूडेंट भी तुम्हारा ये रेफरेंस देते रहते हैं, तुम्हारी तरह वो भी काम नहीं कर रहे, तो तुम्हारे होते हुए स्कूल में पढ़ाना, क्लास में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दैट इज व्हाई यू आर बीन थ्रोन आउट। ठीक है, अब एल्बर्ट बोला यार मेरे पॉकेट में तो ऑलरेडी मेडिकल सर्टिफिकेट था, पर अब वो किसी काम का नहीं रहा। एल्बर्ट फेल्ट दैट अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट वाज बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, पर अब वो कोई काम का नहीं रहा। तो वो अब थोड़ा सा एटीट्यूड में आ गया, एरोगेंस में आ गए, तुम मुझे क्या निकालोगे, आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड। तो प्रिंसिपल, अच्छा चलो कहीं तो हम अग्री करते हैं किसी बात पे, हम भी निकालना चाहते हैं, तुम भी निकालना चाह रहे हो, चलो वेरी गुड, देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टाइन, द हेड सेड। For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school. Then he stopped himself without another word. Holding his head high, he stalked out. फिर जब वो जा रहे थे तो सोचा चलो मैं उसको सुनाऊं कि तुम्हारा स्कूल क्या है, तुम क्या हो, तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड है। वो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, पर बोले क्या फायदा, अब जा रहा हूं, जाते वक्त क्या लड़ना। वो चुपचाप से अपना सर उठाकर वहां से निकल के बाहर चले गए। अब एरोगेंस देखो, गेट खुला छोड़ा है तो छोड़ के चले गए, पीछे से प्रिंसिपल चिल्ला रहा है गेट बंद करो, गेट बंद करो, सुना ही नहीं, वो गया है तो फिर वापस आया ही नहीं। आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे ये जो यहाँ पे ये दिखा रहा है, इट्स एरोगेंस ऑन द पार्ट ऑफ आइंस्टाइन। ठीक है, ही मे बी अ ब्रिलियंट गाय एवरीथिंग, बट यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और एक सिस्टम होता है ना, हर चीज का एक तरीका होता है। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल इज सेटिंग। ये नहीं कि कल आपको लग रहा है कि आप भी बहुत ब्रिलियंट हो तो आप भी कुछ करो, ऐसा नहीं करना आप। ओके, तो वो अपना बाहर निकल गए। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। प्रिंसिपल, गेट बंद करके जा। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, वो चुपचाप चला गया।
He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look. वो मुड़कर देखे भी नहीं, ठीक है. He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. उसको पीछे किसी को goodbye बोलना ही था. He had no friends in the school. खाली मैथ्स टीचर से थोड़ा सा प्यार था, तो उनसे वो मिल चुके थे. तो he had nobody to say goodbyes. He just went on to with his walk. अपना चले गए बाहर, ठीक है. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. खाली वहां पर म्यूनिक में उसको एक ही लड़का पसंद था. उसको टाउन भी नहीं अच्छा लगा, स्कूल भी नहीं अच्छा लगा, खाली यहाँ पे यूरी था. वही उसको टाटा बाय बाय करके वहां से निकल गए. एल्सा वाज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स. और उसकी एक और जो फ्रेंड है कजिन एल्सा, वो भी आ गई थी जर्मनी, ठीक है. तो बस उनके बेसिक फ्रेंड्स है नहीं. गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट. You are going to a wonderful country. I think, I hope you will be happier there. और यूरी उसका फ्रेंड भी समझता था उसको यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. तो बोला टाटा बाय बाय, तुम जहां रहो खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो. एंड दैट इज व्हाई वी हैव एल्बर्ट आइंस्टाइन टू विद अस टुडे. वो वहां से निकले थे. ही मूव्ड ऑन हिज लाइफ एंड ही हैड सम एस्पिरेशंस इन लाइफ, सो ही बिकम सच अ बिग साइंटिस्ट. और उन्होंने हम लोग की बहुत हेल्प करी. उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरीज की, बहुत सारे हम लोग को लॉज बताए फिजिक्स के. सो वी आर थैंकफुल टू एवर थैंकफुल टू हिम. बट ही इज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर एग्जाम्पल. आप इस तरह की हरकत ना करना. अगर आप बहुत ब्रिलियंट हो तो आई होप यू द बेस्ट, बट थोड़ा सा डिग्निटी भी मेंटेन करना. ओके, सो डोंट बी एरोगेंट. ओके, बी हार्ड वर्किंग. सो ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया है और हमने सीबीएसई के बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया है, सीबीएसई 11 के भी 12 के भी. और आपको पता है कि सीबीएसई में बहुत सारे टीचर्स के वीडियोस है, तो हमारा वीडियो खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इसी के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर के वीडियो को शेयर करें. जो बच्चे मुझसे आईसीएसई से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो तो जानते हैं, और जो नए बच्चे अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, आई लव यू. आप मेरे को कम्युनिटी में बोलना, मैं आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा. ओके. Oh, I need to end this meeting.